Okay, so we have completed the permutation portion of this chapter, and we will now see the combination. Okay, what combination is exactly? And now let me just first read this paragraph. See, combination means what? Permutations involve ordered arrangements of objects. We shall now consider situations where the order of objects in an arrangement is immaterial, but only selection of a set of objects in the arrangement is considered. A selection of objects without any consideration of the order is called combination. अभी परम्यूटेशन में और कॉम्बिनेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो क्या है कि परम्यूटेशन में ऑर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, बट कॉम्बिनेशन में उसकी ऑर्डर इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उसका प्रेजेंस महत्वपूर्ण है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि आपके पास तीन वर्ड्स है, सॉरी तीन लेटर्स है, ए बी सी, एंड make the possible letters that can be made from this. Okay, so we will simply say 3 factorial, मतलब कि 6 वर्ड्स बन सकते हैं अगर मैं दो लेटर को लेके एक वर्ड बनाऊंगा. फॉर एग्जाम्पल ए बी बन सकता है, बराबर, बी ए बन सकता है, उसी तरह से बी सी बन सकता है, सी बी बन सकता है, ए सी बन सकता है और सी ए भी बन सकता है. सो दिस इज परम्यूटेशन. ओके, बट व्हेन इट कम्स टू कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में इसकी ऑर्डर का कोई भी महत्व नहीं है, मतलब कि पहले ए रहे या फिर बी रहे, दैट इज वन एंड द सेम. यानी कि कॉम्बिनेशन में हम इन दोनों चीजों को या फिर इन दोनों अरेंजमेंट्स को एक ही अरेंजमेंट मानते हैं. ओके, ए बी एंड बी ए इज सेम फॉर कॉम्बिनेशन, मतलब उनका सिर्फ प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है. ए एंड बी बोथ आर प्रेजेंट, देयर ऑर्डर डू नॉट मैटर, डज नॉट मैटर. ओके, सिमिलरली बी सी और सी बी के लिए भी सेम, ए सी और सी ए के लिए भी सेम. मतलब कि जब हम कॉम्बिनेशन करेंगे ए बी सी का सच दैट कि हमें 2 लेटर्स एट अ टाइम लेने हैं और कुछ वर्ड्स बनाने हैं, सो देयर विल बी 3 वर्ड्स. ओके, number of words will be 3. We are not considering the order here. Okay, so I hope you have understood the concept of combination. Now just let me read the next paragraph. Consider the earlier example from the permutations where two chairs were filled from a group of 4 persons. अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ए बी सी वाला सिमिलर एग्जांपल है. इसमें 3 की जगह पे 4 पर्सन्स है और 2 चेयर्स फिलअप करने हैं, बराबर. सो 2 चेयर्स किन, मतलब कोई भी 2 पर्सन अगर फिलअप करे, सो इट डजेंट मैटर कि मतलब उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, ए बी करे या फिर बी ए करे, वन एंड द सेम, सी बी या फिर बी सी, वन एंड द सेम. सो इसी तरह से हम कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करते हैं ना. कॉम्बिनेशन के लिए जो फॉर्मूला है, डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, a combination of a set of n distinct object taken r at a time without repetition is an r element subset of the n object. So combination में repetition हम नहीं लेते हैं. Okay, one object will be at a time. Note the order of arrangement of the element is immaterial in combination, जो कि हमें पता है कि ऑर्डर का इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, सो कॉम्बिनेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एनसीआर से, एनसीआर से, और एन और आर के जो नोटेशंस है वो सिमिलर है. एन मींस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड आर मींस द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दैट वी आर सेलेक्टिंग. ओके, सो formula for combination is ncr is equals to r factorial ncr is equals to n factorial divided by n minus r factorial multiplied by r factorial. So please write down this formula for combination. C stands for combination, all of us knows that. Have you written the formula? After writing the formula, let me know. Okay, Sankalp has written very quickly. Okay, Suraj has also written. Okay, okay, good. So see, what is the difference between formula of permutation and combination? Only this r factorial is additional in the formula of combination, correct? So if we divide by r factorial, so it is nothing but the permutation, but we are dividing by r factorial, so it is quite easy formula to remember. Yes, order doesn't matter in combination, only the presence of that particular object matters.
and in permutation we solely focus on order of the any element, order as well as presence, मतलब उसका order भी important रहेगा और उस object का presence भी important रहेगा when it comes to permutation. लेकिन combination में वैसा नहीं है, order is not important, only the presence is important. Okay, now let's solve some examples based on this. So there are two formulas. Okay, remember two of them. फर्स्ट फॉर्मूला इज दिस, एनसीआर इज इक्वल टू, जो कि मैंने आपको लिखने के लिए बोला है, ये फॉर्मूला एक, और दूसरा फॉर्मूला ये है कि एनपीआर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल. दिस इज अगेन द सेकंड फॉर्मूला दैट वी विल बी यूजिंग while solving the questions. Okay, so these two formulas are very useful for us. Now let us see some properties of combination. What are the properties of combination? Okay, now consider n minus r. Okay, I'll just zoom it for you so that you will be able to see it properly. Consider n minus r. Okay, so अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ये प्रूफ आपको कहीं पे भी काम नहीं आने वाला है. You just have to remember that the value of r is between n and 0. That means it is positive. Okay, n is a natural number, हमें पता है, and its value is also a natural number. r की वैल्यू जो अगर नेचुरल नंबर रहेगी, then n minus r is nothing but ncr. ठीक है, so you have to write down only this. ये लिख लीजिए. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दिस, nc n minus r is equals to ncr for r is between 0 and n. Write down this first property. Okay, Samir, thank you Samir. Okay, Arya, you are 6 minutes late, so you have missed some portion. Okay, लिख लिया सब लोगों ने फर्स्ट प्रॉपर्टी. हमें प्रॉपर्टीज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी कॉम्बिनेशन में. ओके, कॉम्बिनेशन के जो एग्जांपल्स है वो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज हमें बहुत ज्यादा है और उनको यूज करना पड़ता है, इसलिए थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हमें वो लगते हैं. ओके, नाउ लेट्स जस्ट गो टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. सी nc0, nc0 is equals to 1. nc0 is equals to 1 because 0 factorial is 1, n minus 0 is n, and n factorial divided by n factorial, that is 1. So we can write nc0 is equals to 1. This is the second property. Right, everyone? nc0 is equals to 1. Okay, good. चलो ठीक है. So write down the third property. If ncr is equals to ncs, then either s is equals to r or s is equals to n minus r. This is very important property. Okay, this will be very useful for us, so you have to write it right now. Write down this third property. राइट डाउन थर्ड प्रॉपर्टी. फोर्थ प्रॉपर्टी वी नो, हमें पता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है. उसके बाद में फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखिए, समझ लीजिए फिफ्थ प्रॉपर्टी को क्या है. उसके बाद में सिक्स प्रॉपर्टी, सेवन प्रॉपर्टी, 7 प्रॉपर्टीज लिखने के बाद में मुझे डन लिखिए. ओके, राइट डाउन टिल सेवेंथ प्रॉपर्टी. एस इंस्टेड ऑफ आर वी आर यूजिंग एस हियर. ओके, मतलब हम एक अलग वेरिएबल यूज कर रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन एस एंड आर. एस क्या है ये समझ में आएगा जब हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे. एस इज जस्ट अनदर वेरिएबल यूज्ड फॉर आर. जल्दी जल्दी लिखिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. ओके, समीर का हो गया, बाकी लोग
सूरज का भी हो गया 7th प्रॉपर्टी तक, संकल्प का भी हो गया, वेरी गुड. Okay, we will just go through these properties as you have written all these properties, because these properties are going to be very helpful for us. And आर्या का भी लिख के हो गया. Okay, so सूरज ने पूछा था कि what is S? S is nothing but, yes, S is equals to n minus R. S is another variable. या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि S is equals to n minus R, या फिर R is equals to n minus S. दोनों भी सेम ही है. ओके, मतलब n और s में इतना कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है. लेकिन मान लीजिए कि हमें कोई एग्जांपल दिया है कि c, n की वैल्यू है लेट अस सपोज 5c3 दी है. ओके, दिस इज फर्स्ट एग्जांपल. एंड 5c5 दिया है. सो लेट अस, वी आर कंसिडरिंग दिस एज r एंड दिस एज s. ओके, अभी इनका n जो है, n तो सेम ही है, 5 है. सो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या रहेगा, इस 3 और इस 5 के बीच में क्या रिलेशन रहेगा? So that relation is this: either s is equals to r or s is equals to n minus r. Okay, so it is nothing confusing. Okay, so fourth property explain करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही कर दी है. अभी देखिए, ncr plus ncr minus 1 is equals to n plus 1 cr. see, n is same, मतलब कि मैं यहाँ पे अगर लिखूंगा 3c2. ओके, सो एन सी आर माइनस 1 क्या होगा? एन सी आर माइनस 1 होगा 3c2 minus 1 is 1, and that is going to be 4c2. ओके, सो ये प्रॉपर्टी भी हमें बहुत काम में आने वाली है. मतलब कि n अगर सेम है और r पहले का r, सॉरी दूसरे का r पहले के r से 1 से कम है, मतलब कि वो एडजेसेंट नंबर से, then we can simply add, or yes, we can add 1 to the n, that is 3 plus 4, 3 plus 1 is 4, and just put the value of r as it is 2. Okay, so this is the fifth property. Now sixth property is what? Sixth property is similar. See, nc0 plus nc1 plus so on up to ncn, so that is going to be 2 raised to n. मतलब n की जो कुछ भी वैल्यू रहेगी यहाँ पे, सो इस समेशन की जो टोटल वैल्यू रहेगी दैट इज गोइंग टू बी 2 raised to n. ये भी आपको ध्यान में रखना है. नाउ nc0 plus nc2 plus nc4 plus so on, और nc1 मतलब कि यहाँ पे इवन नंबर से. यस, हाउ इट बिकम 4c2? ओके, सी, मैंने क्या बोला था कि आपको n की वैल्यू 3 है, बराबर, n की वैल्यू 3 दी थी, सो n प्लस 1 इज 4 ना, एंड c तो c रहेगा, और r जो है, r मैंने पहले 2 लिया था तो r भी मैंने 2 ले लिया, n प्लस 1 इज 4 एंड r एज इट इज. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज 4c2. नाउ अगर हमारे सारे जो r है, सारे r अगर इवन है या फिर ऑड है, then the summation of such combinations is going to be 2n minus 1. देखिए यहाँ पे 2n है, क्यों? क्योंकि सारे हैं, सारे 0 से लेके n तक के सारे नंबर्स है, लेकिन यहाँ पे 0 से लेके n तक के सिर्फ either even numbers or odd numbers, then the summation is going to be 2 raised to n minus 1. ओके, नाउ एनसीआर को हम किस तरह से लिख सकते हैं? एट प्रॉपर्टी इज आल्सो इंपॉर्टेंट, यू कैन राइट इट डाउन. एनसीआर इज इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाय आर, एन माइनस 1 सी आर माइनस 1. ओके, मतलब कि हमने एन बाय आर यहाँ पे लिख दिया, एन में से एक सब्ट्रैक्ट किया और आर में से भी एक सब्ट्रैक्ट किया. सिमिलरली देखिए, एन माइनस आर तो एज इट इज है, हमने क्या किया, फिर एन माइनस 1 को भी यहाँ पे ले लिया, आर माइनस 1 को भी यहाँ पे ले लिया, और n माइनस 2 सी आर माइनस 2 लिख दिया. इसके अगर आगे मैं बढ़ाना चाहूंगा, सो मैं n माइनस 2 डिवाइडेड बाय r माइनस 2 भी कर सकता हूं, और c के यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, फिर n माइनस 3 सी आर माइनस 3. सो इस तरह से भी हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं. ओके, अभी ये प्रॉपर्टी किस प्रॉपर्टी की सिमिलर है? परम्यूटेशन के. परम्यूटेशन में हम, आपको पता है ना कि अगर n फैक्टोरियल है तो हम कैसे लिखते थे? n n माइनस
1 factorial. Okay, so it is not that similar, but we can relate both the properties. Okay, now eighth property लिख लिया आपने. Now let's come to the ninth property. NCR has a maximum value if a is r is equals to n by 2 when n is even, or r is equals to n minus 1 by 2 or n plus 1 by 2 when n is odd. ओके, अभी एनसीआर की वैल्यू मैक्सिमम कब रहेगी? अगर r इवन है, मतलब कि r की वैल्यू 4 है, सो सॉरी, व्हेन n इज इवन मतलब n की वैल्यू 4 है, सो 4 by 2 दैट इज 2, सो 4c2 की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम रहेगी. क्यों? क्योंकि r इज इक्वल्स टू और r इज half of the n. Okay, r is half of the n, that's why this combination will give the maximum value. And let us suppose if this c, this n is odd number and 5c3. okay, so let यहाँ पे 3 मैं नहीं लिखता हूं. सो 5c और लेट अस सपोज r है, तो r की वैल्यू ऐसी कौन सी वैल्यू रहेगी जिससे के लिए कि वो कॉम्बिनेशन मैक्सिमम आउटपुट दे या फिर मैक्सिमम वैल्यू दे. सो n प्लस 1/2 और n माइनस 1/2, मतलब r की एक तो वैल्यू 2 के लिए या फिर r की वैल्यू 3 के लिए इस कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट है वो मैक्सिमम आएगा. ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. आठवीं और नवीं प्रॉपर्टी आप लोगों ने लिख नहीं ली है तो लिख लीजिए, अगर लिख लिए तो डन डाल दीजिए चैट बॉक्स में. 8, 10, 9 प्रॉपर्टी लिख लीजिए. लिख लिया सब लोगों ने? समीर का हो गया, आर्या का भी हो गया. ओके, सब लोगों का हो गया. सो हम कुछ सॉल्व एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद में हम प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज भी देखेंगे, और आई विल मेक श्योर कि हम आपके जो एक्सरसाइज है उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करें. कुछ डाउट से सूरज के आई थिंक एक्सरसाइज 3.2 में से, बराबर सूरज? एक्सरसाइज 3 तुमने जो कुछ भी क्लासरूम में डाउट्स पोस्ट किए हैं, दोज डाउट्स आर फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2. प्लीज कंफर्म. ओके, गुड. सो आज के इस लेक्चर में तो सारे डाउट्स और हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट नहीं होगा. ओके, सो वी विल नीड वन मोर लेक्चर फॉर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर. सो आज हम जितने एग्जांपल्स ले सकते हैं इस प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड, उतने एग्जांपल्स हम आज कवर करेंगे, और बचे हुए एग्जांपल्स जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे. ओके, सो देयर विल बी वन मोर क्लास ऑन दिस टॉपिक. सो कुछ सॉल्व एग्जांपल्स हम सॉल्व करते हैं. सी, ये तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करनी है एंड यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द आंसर. 7c3 किस तरह से फाइंड आउट करना है ना, नॉट अ बिग डील. n की वैल्यू रख दी, n माइनस आर की वैल्यू रख दी, r की वैल्यू रख दी, और सिंपल कैलकुलेशंस कर लिए. ओके, जो कुछ भी डाउट्स है तो वो आज के होमवर्क में आप डाल दीजिए. सो वी विल क्लियर दोज डाउट्स एज वेल एज the remaining questions in the next class and we will conclude this chapter. okay, so इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इतना कुछ मुश्किल नहीं है. now this one is also easy. okay, now let's take this example. okay,
Example second, find n and r if ncr minus 1 is to ncr is to ncr plus 1 is equals to 14 is to 8 is to 3. सो यहाँ पे हमें रेशो के फॉर्म में कॉम्बिनेशंस दिए हैं और उनके जो रेशोस है वो कितने आते हैं वो दिए हैं. ओके, सो वी विल जस्ट सेपरेट देम आउट. सी ncr minus 1 divided by ncr is equals to 14. 14 by 8. So 14 by 8 को हम 7 by 4 लिख सकते हैं एंड ncr divided by ncr plus 1 को हम is equals to 8 by 3 हमने लिख दिया. ओके, मतलब ये इन दोनों के साथ में और इन दोनों के साथ में हमने लिख दिया. Now we have to just simplify them. So how we can simplify them? For that I have to open the whiteboard. Okay, so just give me a second. I will write this example on whiteboard and then I will show you the whiteboard. Okay, okay, see, n c r minus 1 divided by n c r is equals to 7 by 4. Okay, so we will try to solve this. ncr minus 1 का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं. सबसे पहले तो रहेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r माइनस 1 यानी कि क्या r प्लस 1 हो जाएगा, बराबर r प्लस 1 हो जाएगा और इसका फैक्टोरियल एंड r माइनस 1 का फैक्टोरियल, बराबर लिखा मैंने. और इसके अगर मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगा तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ncr है ना, सो n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय r फैक्टोरियल, बराबर. सो इसके इक्वल में रहेगा 7 by 4. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर. ये n फैक्टोरियल कट जाएगा. y r प्लस 1 सी n माइनस आर हम यहाँ पे करते हैं ना, सी n माइनस आर हम यहाँ पे करते हैं, लेकिन r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है r माइनस 1. मतलब यहाँ पे इन ब्रैकेट r माइनस 1 अगर हम लिखेंगे तो ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा तो n माइनस आर हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ओके, सो दैट्स वाई r प्लस 1. ओके, गुड. सो देखिए ये जो है ये यहाँ पे जंप करेगा और ये यहाँ पे जंप करेगा. सो दिस इज कमिंग इन डिनोमिनेटर एंड दिस इज कमिंग इन न्यूमरेटर. सो ये दोनों कट जाएंगे और ये जो डिनोमिनेटर है सबसे नीचे वाला ये चला जाएगा ऊपर और ये यहाँ पे जो बचा है दैट इज गोइंग टू बी द न्यू डिनोमिनेटर. ओके, सो आवर एग्जांपल विल बी लाइक n माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल. मैं यहीं से इसको यूज कर लेता हूँ. ओके, सो इसके डिनोमिनेटर में आएगा n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल एंड r माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 7 by 4. बराबर, यहाँ तक करेक्ट है, सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? ओके, गुड. सो सी अभी हम n माइनस आर प्लस 1 को किस तरह से लिख सकते हैं. अगर मैं इससे एक कम करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये n माइनस आर बन जाएगा, बराबर. सो देखिए n माइनस आर फैक्टोरियल को मैं एज इट इज लिखता हूं, लेकिन मैं r को किस तरह से लिख सकता हूं, आई कैन राइट r एज r माइनस 1 फैक्टोरियल. मैंने r फैक्टोरियल को r मल्टीप्लाइड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल से रिप्लेस कर दिया. ओके, नाउ ये जो n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल है ना, तो मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूं, देखो n माइनस आर प्लस 1 and its adjacent term will be n माइनस आर फैक्टोरियल, बराबर. इस तरह से मैं लिख सकता हूं. किसी को कोई डाउट? नो डाउट, गुड. ओके ओके, गुड. सो सी n माइनस आर और n माइनस आर फैक्टोरियल कट गया, r माइनस 1 फैक्टोरियल कट गया, r माइनस 1 फैक्टोरियल कट गया.
सो बचा क्या, r डिवाइडेड बाय n माइनस r प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7/4, बराबर। सो यहाँ पे जो सिंप्लीफिकेशन दिया है ना, सी दिस सिंप्लीफिकेशन इज सिमिलर टू आवर सिंप्लीफिकेशन। सिमिलरली जिस तरह से मैंने वो सॉल्व किया उसी तरह से हम ये भी सॉल्व कर सकते हैं फॉर सेकेंड वन। इसके लिए भी हम सिमिलर टेक्निक यूज कर सकते हैं। वी हैव टू यूज द फैक्टोरियल। फैक्टोरियल की प्रॉपर्टीज है ना, हम उसको एडजेसेंट टर्म्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे यूज करना है और आप इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद में क्या बचता है, उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड सिंपल अलजेब्रा इज देयर, एंड आफ्टर दैट you will get the value of r and n, so that is going to be 7 and 10। तो इसमें कुछ भी समझाने वाली चीज नहीं है, आप सब लोग समझ जाएंगे। जो पार्ट मतलब यहाँ पे स्किप कर दिया गया है वो पार्ट मैंने सिर्फ आपको समझाया कि ये r डिवाइडेड बाय n माइनस r प्लस 1 क्यों आया और r प्लस 1 डिवाइड बाय n माइनस r क्यों आया, ये दो टर्म्स क्यों आए ये समझाया। बाकी आप लोग समझ सकते हैं। ओके, नाउ जस्ट मूव टू द third example. There are n points in plane. Find the number of straight lines and triangles that can be obtained by joining points on a plane if no 3 points are collinear. Okay, मतलब कोई भी 3 पॉइंट जो है वो कोलिनियर नहीं है, तब जाके हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। सो लेट अस सपोज देयर आर n पॉइंट्स, n पॉइंट्स दिया गया है हमें, और हमें स्ट्रेट लाइन के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत है, 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, बराबर। वी नीड 2 पॉइंट्स फॉर अ स्ट्रेट लाइन, मतलब कोई भी 2 पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर देंगे सो वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, इजंट इट। सो सिंपली आवर n is going to be n and r is going to be 2, मतलब nc2 ways में हम from n points we any 2 points can be selected in nc2 ways। समझ में आया। टू टू क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है n पॉइंट्स में से। सिमिलरली ट्रायंगल्स अगर हमें ड्रॉ करने हैं तो ट्रायंगल्स के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, 3 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। सो nc3 विल बी द वेज। सो n की वैल्यू अभी हमें यहाँ पे दी नहीं गई है, इसलिए हम इसको फर्दर कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो अगर हम इतना भी लिख देते हैं कि nc3 ways, then that is sufficient। okay, so number of triangles are nc3। if p points are collinear then we can obtain pc2 straight lines। देखिए मतलब अगर 3 पॉइंट्स सॉरी p पॉइंट्स अगर कोलिनियर नॉन कोलिनियर है, so then we can obtain pc2 straight lines and pc3 triangles from those p points, but we are given p points are collinear, therefore they form only one line and no triangles that we counted pc2 minus 1 and extra lines pc3 minus so pc3 extra triangles। if p points p is greater than or equal to 3 are collinear, then number of straight lines nc2 minus pc2 minus 1 and number of triangles will be nc3 minus pc3। अभी ये pc3 ये pc3 minus 1 ये क्यों हमें दिया गया है कि देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स है। ओके, 1 2 3 4 पॉइंट्स है। ओके, सो इन 4 पॉइंट्स की मदद से हम कितने ट्रायंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं। अभी मैं फर्स्ट केस के लिए बात कर रहा हूँ। फर्स्ट केस के लिए कितने ट्रायंगल्स यहाँ पे ड्रॉ हो सकते हैं अलग अलग। एक ट्रायंगल तो ये ड्रॉ होगा, बराबर, दूसरा ट्रायंगल ये ड्रॉ होगा। अभी मैं इन दोनों को मिटा देता हूँ, इन 2 ट्रायंगल्स को, 2 तो ड्रॉ हो गए ऊपर के साइड में। तीसरा ट्रायंगल ये ड्रॉ होगा एंड चौथा ट्रायंगल जो है वो मतलब 4 ट्रायंगल्स ड्रॉ हो सकते हैं, अलग अलग 4 ट्रायंगल्स। एवरीबडी इज एग्री विथ मी कि 4 पॉइंट्स अगर दिए गए हैं हमें, सो वी कैन ड्रॉ 4 ट्रायंगल्स, करेक्ट। नाउ इसमें से मान लीजिए कि 3 ट्रायंगल्स सॉरी 3 जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। सी कोलिनियर मींस व्हाट, they are in a straight line। let us suppose 1 2 3 and the third point is somewhat here। okay, so first triangle will be this, okay, and second triangle will be this and the third triangle is going to be this। मतलब कि एक ट्रायंगल कम बन रहा है, बराबर। सो सिमिलरली हमें p पॉइंट्स दिए गए हैं ना, सो p पॉइंट्स
में से 3 पॉइंट्स हमें यूज करके जितने भी ट्रायंगल्स बनेंगे, पी पॉइंट्स कोलिनियर है, बराबर। जितने पॉइंट्स कोलिनियर है उसमें से 3 पॉइंट्स हम लेके ट्रायंगल बना रहे हैं, और जितने टोटल ट्रायंगल बने हैं उसमें से उसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो दैट वी विल गेट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विच कैन बी मेड व्हेन पी पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, अगर समझ में आया है तो वेरी गुड, नहीं समझ में आया है तो नेक्स्ट एग्जांपल में आपको इसकी क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ एग्जांपल। Now just read the fourth example. I will give you 10-20 seconds time. Yes. We were subtracting the figures that were collinear triangles. Collinear points, मतलब collinear points के लिए जितने triangle बने वो हम subtract कर रहे हैं. Yes, correct. Okay, fourth question read कर लिया. Now fourth question में देखिए, 4 cards are drawn from a pack of 52 playing cards. In how many different ways can this be done? How many selections will contain exactly one card from each suit? Okay, so देखो, अभी हमें क्या करना है, 4 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं इन फ्रॉम द 52 प्लेइंग कार्ड्स. सो फर्स्ट कंडीशन इज एग्जैक्टली वन कार्ड ऑफ ईच सूट, मतलब कि आपको पता रहेगा कि 52 कार्ड्स में से 26 कार्ड्स ब्लैक रहते हैं और 26 कार्ड जो है वो रेड रहते हैं, और उन 26 कार्ड्स में भी 2 टाइप के कार्ड रहते हैं और रेड कार्ड्स में भी 2 टाइप के कार्ड रहते हैं, बराबर. सो मतलब वहां एक्चुअल में वहां पे 4 टाइप के कार्ड्स रहते हैं, 13 मतलब 13 टाइप के सिमिलर कार्ड रहते हैं, 13 टाइप के सिमिलर, इस तरह से 4 ग्रुप्स हम बना सकते हैं 13 कार्ड्स के. ओके, सो उन 4 ग्रुप्स में से हमें एक एक कार्ड उठाना है, बराबर. मतलब ईच एग्जैक्टली वन कार्ड फ्रॉम ईच सूट. सो देखिए, उन कार्ड्स के नाम भी दे दिए गए यहाँ पे, क्लब, स्पेड, डायमंड एंड हर्ट. सो डायमंड एंड हर्ट जो है वो रेड कार्ड रहते हैं, एंड क्लब एंड स्पेड कार्ड जो रहते हैं वो रहते हैं ब्लैक कार्ड्स. सो हमें क्लब का भी एक कार्ड उठाना है, स्पेड का भी एक कार्ड उठाना है, डायमंड का भी एक उठाना है, और हर्ट का भी एक उठाना है. सो हम इसको किस तरह से उठा सकते हैं? सो देखिए, किस तरह से उठा सकते हैं. A pack of 52 cards contain 4. Okay, let we will see 4 different suits, which is club, spade, diamond, and heart. Each suit contains 13 cards. Club and spade cards are black color cards. Diamond and heart cards are red color cards. That is, pack of 32 cards contain 26 black and 26 red color cards. From pack of 52 cards, any 4 cards can be drawn. That is, मतलब अगर 4 cards हमें randomly draw करने हैं, so this much number of ways are there. टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स मतलब कितने वेज है, यहाँ पे हम फर्स्ट कंडीशन के लिए नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं. 4 कार्ड्स एट अ टाइम हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं, सो दैट इज दिस. सो अगर हमें एग्जैक्टली वन कार्ड फ्रॉम ईच सूट चाहिए, सो क्लब कार्ड सेलेक्ट करने के लिए हमें 13C1 यूज करना पड़ेगा, मतलब 13 में से कोई भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है. हाउ 48 n minus r, n is 52, r is 4, so n minus r is 48. ओके, ठीक है. सो देखो, क्लब में से हमने कितने सेलेक्ट किए, 13 में से एक सेलेक्ट किया, सो देयर आर 13 वेज. सिमिलरली हर्ट में से भी हमें एक सेलेक्ट करना है, हर्ट के कार्ड रहते हैं 13, सो 13 वेज एंड 13 वेज. सो इन चारों की हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, बराबर. मतलब 13 कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड आ सकता है, सो 13 पॉसिबिलिटीज आर देयर. सिमिलरली फॉर द सेकेंड केस 13 पॉसिबिलिटीज आर देयर. फॉर द थर्ड केस, सो 13 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और 13 raised to 4 ways are there, so that we can exactly draw one card each from each suit. Okay, so this is for first condition. Now for the second condition, all card are of the same suit. मतलब कि सभी जो कार्ड हमने ड्रॉ किए हैं, चारों के चारों कार्ड कैसे हैं कि सेम ही सूट में से है, आइदर दे आर स्पेड, क्लब, डायमंड और हर्ट. सो इस केस में क्या होगा कि हमारे पास 4 ग्रुप्स है, बराबर. 4 ग्रुप्स है ना, 4 सूट्स है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कॉम्बिनेशन जो रहेगा 4C1 रहेगा. 4C1 क्यों?
क्योंकि 4 ग्रुप्स में से हमें एक ग्रुप सेलेक्ट करना है। अभी हमने एक सिलेक्ट कर लिया, मान लीजिए हमने हर्ट का ग्रुप जो है, रेड कलर का कार्ड रहता है ना हर्ट का, सो वो ग्रुप सेलेक्ट कर लिया। सो उसमें से भी हमें 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं। सो हर्ट के ग्रुप में या फिर हर्ट के सूट में रहते हैं 13 कार्ड, सो 13 में से हमें कोई भी 4 सेलेक्ट करना है, बराबर। सो दिस आर द वेज। नाउ ये और ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है, इनकी हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। सो वी विल गेट दिस मच नंबर ऑफ वेज आर देयर टू ड्रॉ 4 कार्ड्स फ्रॉम द, और ऑल कार्ड्स आर फ्रॉम द सेम सूट। सो दिस इतने इतने वेज है कि जिससे कि हम सेम ही सूट में से 4 कार्ड्स निकाल सकते हैं। ओके, सो दिस इज फॉर सेकेंड कंडीशन। ये आपको क्या ध्यान में रखना है, सिर्फ 4C1 इज इक्वल टू 4 वेज एंड 13C4। 13C4 क्यों लिया, 4C1 क्यों लिया, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना। ऑल क्लब कार्ड्स मतलब अभी देखिए उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि आपको जो चारों कार्ड सिलेक्ट करने हैं, दो 4 कार्ड शुड बी फ्रॉम द क्लब सूट। सो क्लब के जो कार्ड रहते हैं वो रहते हैं 13, और 13 में से हम 4 निकालेंगे तो दैट इज 715 ways are there, so that all the 4 cards will be of club cards। यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी की नहीं बात कर रहे, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्बिनेशन, कि मतलब कितने वेज से हम वो कार्ड ले सकते हैं। ओके, डोंट डोंट कंफ्यूज दिस विथ प्रोबेबिलिटी। ओके, नाउ at least one club card from a pack of 32 cards, any 4 cards can be drawn in 52C4 ways if there is no condition. From 52C4 selections, remove those selections that do not contain any club card। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पॉसिबिलिटीज है कि कितने वेज से हम 4 कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, दैट वेज आर 52C4। मतलब 52 में से हम कोई भी 4 कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें क्या करना है कि एटलीस्ट 1 क्लब कार्ड होना चाहिए। इतने इस तरह से कितने वेज से हम कार्ड निकाल सकते हैं वो देखना है। ओके, सो एटलीस्ट 1 मतलब कि चारों के चारों भी क्लब रह सकते हैं, या फिर 3 क्लब रह सकते हैं, या फिर 2 क्लब रह सकते हैं, या फिर 1 क्लब रह सकता है। ओके, एटलीस्ट 1 यानी कि कुछ भी इन तीनों में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। कौन सी पॉसिबिलिटी हम डिनाई करेंगे, कि वही पॉसिबिलिटी हम डिनाई करेंगे कि जिसमें क्लब का कार्ड है ही नहीं। तो क्लब का कार्ड है ही नहीं तो क्या, कि बाकी जो 3 बचे हैं, सी इफ the selection does not contain any club card, that is 4 cards are drawn from remaining 39 non club cards। मतलब अगर इन 13 कार्ड्स को हम साइड में कर दे तो बचे कितने कार्ड्स, 39 कार्ड्स बचे। सो इफ वी पिक 4 कार्ड्स फ्रॉम दोज 39 कार्ड्स, so there is the possibility that the pack or the selection will not contain the club card। मतलब अगर हम 39 कार्ड्स में से कोई कार्ड उठा रहे हैं, सो उसमें 100% क्लब का कार्ड रहेगा ही नहीं ना, क्योंकि हमने क्लब के कार्ड जो वो साइड में रखे हैं। वी आर पिकिंग अप फ्रॉम द 39 कार्ड। सो दीज आर द वेज दैट क्लब का कार्ड इंक्लूड नहीं हो सकता। सो टोटल नंबर ऑफ वेज में से अगर हम ये इतने नंबर ऑफ वेज सब्सट्रैक्ट कर दे, सो वी विल गेट द नंबर ऑफ वेज for which at least one club card will be there in our selection। Okay, so I hope you understand this, is it? Okay, good. So now, okay, so now fifth condition is 3 king cards and 1 queen card। So 3 king cards लेने हैं। टोटल king cards कितने रहते हैं, 4 रहते हैं। So 4 में से हमें 3 लेने हैं। So there are 4 ways, and 4 queen cards में से हमें एक queen का कार्ड लेना है। So 4 ways are again there। So this is way, in this way 4 multiplied by 4, that is 16 ways are there। मतलब 16 तरीकों से हम वो पैक्ट में से 3 किंग और एक क्वीन आ जाए, इस तरह से हम कार्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ 3 ब्लैक कार्ड्स एंड 1 रेड कार्ड, इट इज वेरी सिंपल। सी 3 ब्लैक कार्ड्स मतलब 26C3, 26 कार्ड्स में से 3 कार्ड उठाना है, और 1 रेड कार्ड, सो 26 में से 1 उठाना है। सो वी विल जस्ट मल्टीप्लाई दिस 26C3 multiplied by 26C1। So these are the ways, so that our selection will be having 3 black cards and 1 red card will be there। Okay,
ओके, सो अभी हमने कुछ जो प्रॉपर्टीज सीखी है उस प्रॉपर्टीज के बारे में ये कुछ एग्जांपल्स है, देखिए आई जस्ट जूम इट। सी, इफ NC8 is equals to NC6, then find the value of n. What is n? सो हमने क्या प्रॉपर्टी लिखी थी कि अगर NCR is equals to NCS है, then either R is equals to S or R is equals to n minus S or S is equals to n minus R, one and the same. सो यहाँ पे हमने x कंसिडर किया, y कंसिडर किया इंस्टेड ऑफ R and S. ओके, सो हमें दोनों में से एक कंडीशन तो फुलफिल होनी चाहिए, आइदर x इज इक्वल्स टू y शुड बी देयर और x इज इक्वल्स टू n माइनस y शुड बी देयर. सो पहली कंडीशन जो है वो तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है कि मतलब x इज इक्वल्स टू y नहीं है, x इज इक्वल्स टू 8 है, y इज इक्वल्स टू 6 है. सो वी विल सिंपली पुट x इज इक्वल्स टू n माइनस y, और यू कैन पुट y इज इक्वल्स टू n माइनस x. कुछ भी आप पुट कीजिए, n की वैल्यू तो 14 ही आनी है. ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ दैट प्रॉपर्टी. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल. देखिए ये एग्जांपल अच्छे से एक बार देख लीजिए. सो इसमें क्या है कि इसके पहले दो टर्म्स जो है इसका n सेम है, लेकिन r जो है r एडजेसेंट है. मतलब यहाँ पे r है और जो नेक्स्ट है, सॉरी यहाँ पे r है और यहाँ पे जो है r-1 है. सो हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी कि अगर n सेम है और r है और r-1 है, देन हम क्या करते थे कि n+1 करते थे और r को क्या करते थे, हम एज इट इज रखते थे. सो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इनको ब्रैकेट कर लिया, इनके n को 1 से बढ़ा दिया 17, और r की वैल्यू क्या है 5 है तो 5 रख दी. 4 क्यों नहीं रखा रखा क्योंकि 4 इज r-1, r इज एक्चुअल में 4, सॉरी 5. ओके, एंड 4 इज r-1, सो दैट्स व्हाई 17C5. इस तरह से हमने इसको मिनिमाइज कर दिया. सिमिलरली अगर हम ये टर्म यहाँ पे उठा के ले ले तो अभी n सेम हुआ और r इज एडजेसेंट टर्म्स 5 and 6. सो 17 जो है वो बढ़ के हो जाएगा 18, एंड r is equals to 6 is here and r-1 is 5. So we will take r 18C6. Can we take always bigger? We have to take always bigger number. We have to take always bigger number. Okay, because that is r. Yeah. So यहाँ, हाँ, okay, yes, we have to take bigger number as r. Even if you take smaller number, then the logic should not be messed. Okay, so it is feasible for you to take bigger number as r. Now similarly यहाँ पे भी कर दिया उन्होंने, 18 को प्लस करके 19 कर दिया और बिगर नंबर ले लिया 7. सो हमारे राइट साइड में था 19CR, लेफ्ट साइड में आ गया है 19C7. सो 7 इज इक्वल्स टू r और 7 इज इक्वल्स टू 12. 7 इज इक्वल्स टू 12 क्यों हुआ कि r इज इक्वल्स टू n माइनस r भी तो होता है, n माइनस s भी तो होता है. सो r इज इक्वल्स टू आइदर 7 और 12. ओके, अंडरस्टूड. एग्जाम्पल 7 6. सिक्स्थ एग्जाम्पल. ओके गुड, चलो. सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ 8CR and 11CR. नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 8CR ऑकर्स एट r इज इक्वल्स टू 4. जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर n की वैल्यू इवन है सो r की वैल्यू अगर n/2 है तो NCR की वैल्यू मैक्सिमम आती है, बराबर. सो r की वैल्यू अगर 4 रहेगी तो इस NCR की और 8CR की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी 70. देखिए मैक्सिमम वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली, r की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, उसी तरीके से हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दैट इज 70. नाउ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 11CR ऑकर्स एट आइदर r is equals to 10/2 is equals to 5 और r is equals to 12/2 is equals to 6. मतलब 5 पे या फिर 6 पे n की जो है वो सॉरी 11CR की जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑकर करेगी. नाउ देखिए दोनों पे अगर हम कैलकुलेट करें 11C5 पे भी कैलकुलेट करें, 11C6 पे भी कैलकुलेट करें तो 462 ही आएगी. सो डिफरेंस हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है. क्या बोला गया है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ. सो जो बड़ी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी 462, उसमें से अगर हम 70 माइनस करेंगे तो 392 विल बी द डिफरेंस बिटवीन द टू वैल्यूज, द टू मैक्सिमम वैल्यूज. ओके, सो नाउ हियर स्टार्ट्स द एग्जाम एक्सरसाइज 3.6. सो इसमें से ये
जो है वो आप कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं, ये तो अभी आप लिख सकते हैं, इतना कुछ मुश्किल नहीं है, ये भी आप कर लेंगे। उसके बाद में ये भी आपको ही करना है, ये भी आपको ही करना है, ये भी आपको ही करना है। ट्राई कीजिए, अगर नहीं आता है तो मैं सॉल्व करूंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, नाउ लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स। ओके, अभी थर्ड एग्जाम्पल को भी आपको किस तरह से करना है, आपको अगर हिंट है आप कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है तो आप प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स कि हम करेंगे, या फिर मैं इसको ले लेता हूं, बताइए। बाकी के क्वेश्चंस भी हम लेने ही है इन द नेक्स्ट क्लास, लेकिन थर्ड वन, व्हाट शुड वी डू, शैल आई टेक इट और नॉट? ओके ओके, टेक इट, ओके ओके ओके, गुड, ठीक है। तो सी, मैं यहाँ पे आपको इसको एक्सपैंड कैसे करना है वो बताऊंगा, उसके बाद में जो बचा हुआ सिस्टम है वो आपको ही सॉल्व करना है, ठीक है। सो देखिए, 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 14 माइनस 2r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2r फैक्टोरियल। ओके, ये 2r ब्रैकेट में है और इसका मैं फैक्टोरियल ले रहा हूं। लेट मी जस्ट reduce the point of the marker. Okay, so and divide by 10 factorial divided by n is what, 10. Okay, so 10 minus 2r minus 4 है, तो मैं यहाँ पे 2r plus 4 लिखूंगा। ओके, फैक्टोरियल एंड 2r माइनस 4 यहाँ पे एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 2r प्लस मैं 4 नहीं लिखूंगा, बराबर। सो ये मैंने यहाँ पे पुटअप कर दिया। सो 143 डिवाइडेड बाय 10 मैंने यहाँ पे लिख दिया। नाउ क्या करना है मुझे, ये जो 10 फैक्टोरियल है ये चला जाएगा यहाँ पे, और ये चला जाएगा यहाँ पे, बराबर। सो 10 फैक्टोरियल, 14 फैक्टोरियल को हम किस तरह से लिख सकते हैं, वी कैन राइट 14 फैक्टोरियल एज 14 मल्टीप्लाइड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 11, बराबर। सो ये 10 फैक्टोरियल और यहाँ पे जो 10 फैक्टोरियल आएगा वो कट जाएंगे। ओके, सो 14 multiplied by 13 multiplied by 12 multiplied by 11 multiplied by this whole term. Now let me just write it down. 14 multiplied by 13 multiplied by 12 multiplied by 11 जो है, इसको फिलहाल के लिए हम x मान लेते हैं, इतना बड़ा मुझे बार बार लिखना पड़ेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे x मान लेते हैं। Now x multiplied by 10 minus 2r plus 4 क्या होगा, 6 माइनस 2r फैक्टोरियल हो जाएगा। ओके, 6 माइनस 2r फैक्टोरियल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट ऐसा रहना चाहिए, एंड ये क्या रहा, 2r माइनस 4 फैक्टोरियल रहेगा। ओके, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 14 माइनस 2r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2r फैक्टोरियल। नाउ 14 माइनस 2r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 2r फैक्टोरियल। समझ पा रहे हो यहां तक, यहां तक समझ में आया सब लोगों को? ओके, सो हमें क्या करना है, r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गुड, सो सी, अभी यहाँ पे 2r है, माइनस 2r है, यहाँ पे भी माइनस 2r है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 14 है। सो मैं अगर इसके उसके एडजेसेंट टर्म निकालूंगा तो क्या टर्म आएगी, 13 माइनस 2r आएगी, बराबर। इसकी एडजेसेंट टर्म निकालूंगा तो क्या आएगी, 12 माइनस 2r आएगी, बराबर। सो इसी तरह से अगर मैं चला जाऊंगा तो 6 माइनस 2r आ जाएगी, 6 माइनस 2r और 6 माइनस 2r कट जाएंगी। 2r को मैं किस तरह से ले सकता हूं, 2r मल्टीप्लाइड बाय 2r माइनस 1, 2r माइनस 2, सिमिलरली 2r माइनस 4 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, ठीक है। सो जो टर्म्स बचेंगे उसमें से कौन से टर्म्स कट सकते हैं वो देखिए, और x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू हमने क्या रखी है, 14 मल्टीप्लाइड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 11 वो रखिए, और 143 डिवाइड बाय 10 जो है वो राइट साइड में रहेगा। उसके बाद में कुछ नहीं, सिंपल अलजेब्रा बचता है, तो उस अलजेब्रा को कीजिए
और आपका आंसर आर का आ जाएगा। ठीक है, अगर इसके बाद में भी नहीं आता है सो आई विल अपलोड द आंसर ऑफ दिस, कि मतलब पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन में अपलोड करूंगा। अभी हमारे पास समय कम है, सॉल्यूशन बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, तो आपको अभी मुझे लगता है आइडिया तो एटलीस्ट आ ही गई होगी कि किस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। ओके, इज इट ओके, आर यू कंफर्टेबल विद दिस? चला टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, तो हम कोई नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, चलो। ओके, सो देखिए फोर्थ एग्जांपल, फाइंड एन एंड आर इफ ए इज एन पी आर इज इक्वल टू 720 एंड एन सी आर एन माइनस वन इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर इज इक्वल टू 120। ओके, तो अभी इसको किस तरह से सॉल्व करना है, देखो एन पी आर का फॉर्मूला क्या रहता है, राइट इट डाउन, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू व्हाट, 720, बराबर 720। सो देखिए एन सी एन माइनस आर इज इक्वल्स टू एन सी आर होता है, पता है हमें प्रॉपर्टी, याद है आप सब लोगों को, लिख लिया है आपने, देख लीजिए, एन सी एन माइनस आर इज इक्वल्स टू एन सी आर होता है, करेक्ट और नॉट? एवरीवन रिस्पॉन्ड क्विकली। Why you people are taking too much of time? Students, am I audible to you? Okay, am I audible to everyone now? Okay, good, ठीक है। तो देखो एन सी आर इज इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर होता है क्या, यस और नो, होता है ना? हमने मैंने प्रॉपर्टी लिख के दी है आपको। सो एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय आर फैक्टोरियल होता है, बराबर। और ये क्या है, 120 दिया गया है, सो 120 मैं यहाँ पे लिख दूंगा। नाउ इफ आई ऑब्जर्व दिस फॉर्मूला इज एक्चुअली ऑफ एनपीआर, दैट इज दिस, करेक्ट। सो इसकी वैल्यू क्या है, 120 है। सो 120 डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू हुआ 720, बराबर। 120 डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 720 हुआ। नाउ आर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, आर फैक्टोरियल इधर मल्टीप्लाई में जाएगा। ओके, 120 इज इक्वल्स टू डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल, नो इट इज 720, आप लोग भी बराबर है बोल रहे हैं, इट इज 720 एंड दिस इज 120। ओके, चलो। सो अभी देखो, थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूं, आर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, ये 120 इधर आ जाएगा डिवाइड में, माई वॉइस इज ब्रेकिंग, ओके रियली, ओके। सूरज इज सेइंग नो, संकल्प इज सेइंग इट इज ब्रेकिंग, ओके संकल्प देयर माइट बी प्रॉब्लम एट योर साइड, प्लीज चेक इट, ओके। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो सी आर फैक्टोरियल विल बी 720 डिवाइडेड बाय 120, 720 divided by 120, that is going to be 720 divided by 120, r factorial is going to be 6, correct? So r is equals to 3, is it? So इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। now let's just take another example, don't worry, we will take all the examples। so ये जो एग्जाम्पल है इसका इस तरह का सिमिलर एग्जांपल मैंने सॉल्व किया है पहले, बराबर। सो आई विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस एग्जांपल, यू कैन सॉल्व दिस। सो ये एग्जांपल सॉल्व कीजिए। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, एन सी आर और एन पी आर की वैल्यू दी गई है फिफ्थ वन में, बराबर। सो इसकी मदद से आपको क्या करना है, पहले तो एन फाइंड आउट करना है, बाद में आर फाइंड आउट करना है, और उसकी मदद से आपको
n+4 एंड CR+3 निकालना है, ये निकालना है। इसमें n और r की वैल्यू आप किस तरह से निकाल सकते हैं ये आपको पता है, ठीक है। तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ इसमें भी सिमिलर है, इसमें भी 3 टर्म्स दिए गए, आपको प्रॉपर्टीज यूज करनी है और उसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आई डोंट सी दिस एज अ हार्ड एग्जांपल। नाउ हियर इज वन अनदर क्वेश्चन, दैट इज सेवेंथ वन। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ड्रॉइंग बॉल्स from a bag that has 6 red balls, 8 green balls and 7 blue balls, so that 3 balls of every color are drawn. Simple. 9 balls draw करने हैं from a bag which has 3 red balls, 6 red balls। 6 में से कितने उठाने हैं हमने? 6C3 मल्टीप्लाइड बाय 8 में से 8 ग्रीन बॉल्स में से कितने उठाने हैं हमने? 3 उठाने हैं। और बचे क्या? 7 ब्लू बॉल्स। 7 ब्लू बॉल्स में से हमने we have to pick up 3 blue balls, so this much number of ways are there to draw the 9 balls from that bag। okay, चलो ठीक है। तो सातवां क्वेश्चन भी हो गया। 7 क्वेश्चन तक तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। उसके बाद में 8वां क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है। देखिए, फाइंड अ नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग अ टीम फ्रॉम 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स फ्रॉम 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। मतलब 6 में से 3 निकालना है हमें, 4 में से 2, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। ओके, now let us see this example. After a meeting, every participant shakes hand with every other participant. If the number of handshakes is 66, find the number of participants। okay, तो हमें यहाँ पे क्या कंसीडर करना है कि टोटल पार्टिसिपेंट्स लेट अस सपोज n है, n पार्टिसिपेंट्स आर देयर। सो हमें फाइंड आउट करनी है एक्चुअल में वैल्यू n पार्टिसिपेंट्स की। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि एवरी पार्टिसिपेंट शेक्स हैंड विथ एवरी अदर पार्टिसिपेंट। मतलब कि एक्चुअल में अगर 2 लोग हैंडशेक कर रहे हैं, बराबर, 2 लोग अगर हैंडशेक कर रहे हैं तो हमें एक हैंडशेक मिल रहा है, बराबर। सो इफ वी थिंक इन अ वे कि वी आर मेकिंग टीम्स ऑफ 2 पीपल्स ईच, मतलब 2 पीपल की हम टीम बना रहे हैं, बराबर। तो 66 टीम्स बन रहे हैं। समझ में आया? 2 पीपल की अगर हम टीम बना रहे हैं अलग अलग लोगों को उठा के, तो 66 टीम्स बन रहे हैं। आई एम जस्ट चेंजिंग वर्ड्स। हैंडशेक की जगह पे मैं यहाँ पे टीम बना रहा हूँ। 2 लोगों में से एक हैंडशेक होता है, बराबर। सो 2 लोगों को उठा के मैं अगर टीम बनाता हूं तो 66 टीम बनती है। सो किस तरह से मैं लिख सकता हूं इसको? NC2, मतलब आई एम पिकिंग एनी 2 पीपल from n number of peoples and making team, so there are 66 teams are there। समझ में आया मैंने NC2 इज इक्वल टू 66 क्यों लिखा? ओके, गुड। सो फर्दर सॉल्व कीजिए। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r, दैट इज ओके n-2 फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल इज 2, बराबर। सो 2 अगर यहाँ पे जाएगा तो यस, 66 हैंडशेक्स को हमने टीम्स कंसिडर कर लिया, सिर्फ थोड़े से वर्ड चेंज कर लिए। सो ये जो 2 है ये चला जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 132 आ जाएगा, बराबर। सो n को हम किस तरह से लिख सकते हैं? देखो, n कैन बी रिटन लाइक n-1 एंड n-2 फैक्टोरियल, बराबर। सो ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो n-2 फैक्टोरियल रहेगा यहाँ पे, और डिवाइड में n-2 फैक्टोरियल तो पहले से ही है, सो ये दोनों कट जाएंगे, इज इक्वल्स टू बचेगा 132। सो n मल्टीप्लाइड बाय n-1 इज इक्वल्स टू 132। सो कौन से ऐसे दो नंबर्स है जिनका की मल्टीप्लीकेशन, कौन से ऐसे दो एडजेसेंट नंबर्स है जिनका की मल्टीप्लीकेशन 132 आता है? ट्राई टू फाइंड इट आउट, फाइंड आउट। 13 12 जा, बराबर। ओके, 13 12 आर 132 ना। सो n इज इक्वल्स टू, इज इट, ओ ओके,
13 12 26 नहीं होते। ओके, सो 12 multiplied by 11. Yeah, 12 multiplied by 11 is correct. So n is equals to n will be 12. So how many number of people are there? 12 people are there. Okay. So चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अभी 8 भी बज चुके हैं एंड वी हैव सॉल्व्ड अराउंड, हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व्ड? वी हैव सॉल्व्ड 9 क्वेश्चंस। ओके, नौ, 9th क्वेश्चन तक हमारा हो चुका है। कितने क्वेश्चंस बचते हैं इसमें? इसमें इसमें क्वेश्चन है 26, मतलब कि अभी लगभग 17 क्वेश्चंस बचे हैं। तो 17 क्वेश्चंस में से मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप मिनिमम 7 क्वेश्चंस तो कर लेंगे, बराबर। इसके जो आगे के 7 क्वेश्चंस है, नाइन्थ क्वेश्चन के आगे के 7 क्वेश्चन, सो वो आप लोग कर लेंगे। और बचे हुए जो 10 क्वेश्चंस है, 10 क्वेश्चंस में से कुछ मैं क्वेश्चंस कंप्लीटली लूंगा और कुछ क्वेश्चंस की आपको हिंट दे दूंगा, ठीक है। सो इस तरीके से हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में ये प्रैक्टिस सेट खत्म करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन का पार्ट है, या फिर अगर ये रिवीजन आप लोग कर लो तो अच्छा होगा, या फिर आज के लिए आपका होमवर्क ही यही रहेगा कि आपका ये जो लेट्स रिमेम्बर वाला पार्ट है ना, ये लेट्स रिमेम्बर वाला पार्ट में जो कुछ भी फॉर्मूलाज लिखे हैं, डेफिनेशन मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। जो सिर्फ फॉर्मूलाज है लेट्स रिमेम्बर वाले, वो सारे आपने लिखने हैं। लाइक देखिए, फैक्टोरियल नोटेशन किस तरह से रहता है, तो ये आप ये लिखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ एडिशन कैसे ये तो लिखने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ये लिख लीजिए। ओके, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन आपको याद होना जरूरी है, ये लिख लीजिए। परम्यूटेशन की डेफिनेशन मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद में लीनियर परम्यूटेशन का आपको एक फॉर्मूला लिखना है। ओके, उसके बाद में ये भी लिख लीजिए, ये एन एन आर क्यू होता है, और एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। क्यू आता है क्योंकि अगर हमारे पास पी ऑब्जेक्ट क्यू ऑब्जेक्ट्स एंड आर ऑब्जेक्ट्स आर रिपीटेड और दे आर आइडेंटिकल, देन वी डिवाइड देम लाइक दिस। तो सर्कुलर परम्यूटेशन की भी आप डेफिनेशन और फॉर्मूला देखिए। मतलब जितना शॉर्ट में हो सकता है उतना शॉर्ट में आपको ये लिखना है। and this is your homework for today. You have to write all this, that's so that I need not to take this in the next class. Okay, so अभी क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। और जो सूरज के जो डाउट्स हैं, उन डाउट्स को हम नेक्स्ट क्लास में टैकल करेंगे। ओके, सो चलो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे एंड बाय बाय। सूरज लीव द क्लास, बाय बाय। सूरज।